Hmm. So once again, hello everyone. This is your course instructor Khushwant Patnani. Let us start off with the session. We have Ayush, Chaitanya, Kartikeya, Kushal, Mahevesh, Naman, Rahul, Tejas, and Viraj with us in the class today. Let's start. So before we do, let us imply on our regular custom. We'll take a short span of break. Why? Because we had learned, if you all can recall the first class, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं थोड़ा सा थमना है, थोड़ा सा स्थिर होना है, right? So we have to pause for a moment before we start anything new, right? So since this is a new class, new day, let us start with a pause. I request everyone to kindly close your eyes and follow as I say. Eyes are closed. Bring a smile on the face. You may join your hands. Eyes are closed. Hands are joined. A big smile on the face. One by one, we take 3 deep breaths on 3 counts. Count 1. Breathe in and breathe out. Count 2. Breathe in and breathe out. Count 3. फिर से एक बार. Take a deep breath in and a deep breath out. हमेशा की तरह हम एक प्रार्थना के साथ इस क्लास का शुभारंभ करेंगे. Request you all to join your hands, close your eyes, and prayers on your lips. One by one, we'll pray, right? So, kindly repeat after me. Dear God, I thank you for this life. I thank you for all the gifts of life. I'm grateful for such good health, wealth, and wisdom. Thank you for your love, kindness. Thank you for the love, respect, motivation, guidance, and support we are receiving from our parents, family, friends, and guidance from our mentors. Dear God, thank you in advance that I have cleared JEE Advanced 2022, NEET 2022 in flying colors and have got admission into one of the best colleges of my dreams. Thank you in advance for clearing this exam and starting off this new journey of my life. Thank you, thank you, thank you. Slowly and steadily, now you may open your eyes. All right, so now let's start, है ना? तो हमने लास्ट क्लासेस में जो भी पढ़ा है ना? There is a small topic called as parallax, right? Parallax क्या होता है और उसका क्या इंटेंशन होता है, ये हम एक प्रैक्टिस क्लास में देखेंगे. प्लस
आई थिंक कार्तिकेय हैड आस्क्ड मी कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर से क्या लेना देना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको अलग अलग जगह अलग अलग बुक में देखने को मिलेगी। ऑल्दो एवरी ईयर इन जेई एग्जाम ये सारी चीजें नहीं आती हैं, लाइक राइट, बट देन क्योंकि आप लोगों ने पूछा है इसलिए हम पढ़ेंगे जरूर, बट इन द कमिंग प्रैक्टिस क्लासेस, ये हमारी रेगुलर क्लास है, प्रैक्टिस क्लास में वी विल सी दैट, ठीक है। ऑल राइट, तो आज हम क्या कर रहे हैं, याद करो हमने शुरुआत कैसे की, हाउ डिड वी बिगिन, राइट। सो दिस इज आवर फिजिक्स क्लास, हाउ डिड वी बिगिन। So first of all, before we start, I just want one cooperation. I want all of you to please raise your hands if my voice is clearly audible to you. If my voice and this board, right, are reaching you in the right manner, please raise your hand. So on Zoom, you have an option to raise your hand, right? Suppose if you're not aware, in order to raise your hand, go to the participant section. There you will find raise hand option. In the bottom there is participant section, go to that and you will find a raise hand option. Please raise your hand if my voice is clearly audible to you. All right, great, thank you class. I think all of you have, yes, let me see, yeah, all are being able to clearly hear me. You can bring your hands down, thank you, right। So let's start off, ठीक है। तो हम कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे, उसका एक क्विक समरी चार्ट देखते हैं, हमने अभी तक क्या क्या किया है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक समरी फ्लो देखते हैं, हम कहां से शुरू हुए थे। तो हमने, याद करो जो आप लोगों के साथ मैंने पहली क्लास लिया, राइट, आपको वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया कि हम, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन क्लास, राइट, थैंक यू। मैंने आप लोगों को फिजिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम कैसे फिजिक्स को अलग अलग लेवल्स पे पढ़ेंगे, राइट। आपकी स्कूल लेवल से शुरू होता हुआ वी विल गो टू एन इंटरमीडिएट लेवल, राइट। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे वी विल कीप राइजिंग आवर लेवल टू, है ना। पहले फॉर एग्जाम्पल जब हम जेई और नीट लेवल पे हैं, राइट, जेई और नीट लेवल पे हैं, उसके बाद स्लोली वी विल ऑल्सो राइज टू द ओलंपियाड एंड जेई एडवांस्ड लेवल्स, ठीक है। राइट, तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से अलग अलग लेवल्स हैं। वी विल बी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद द स्कूल लेवल, राइट। शुरुआत यहाँ से होगी और धीरे धीरे उठते जाएंगे। सो व्हेन आई से स्कूल लेवल वी मीन बेसिक्स, एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हुई पहली बात, ठीक है। फिर हमने आप लोगों के साथ क्या टॉपिक शेयर किया, सबसे पहला हमने चैप्टर किया अपन ने वेक्टर्स, है ना, जहां अपन ने वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ देखा, ठीक है, सीखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। दैट वाज आवर स्टेप नंबर 1। फिर अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था हमने एक चैप्टर या इनफैक्ट चैप्टर कह लो या फिर कॉन्सेप्ट्स कह लो, कुछ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू किया, नाम दिया हमने मैथमेटिकल टूल्स, राइट। हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने समझा, राइट। हमने रेडियंस और डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, इस तरह के एंगल के यूनिट्स देखे, ठीक है। फिर हमने मेरे ख्याल से प्रोग्रेशंस देखे, अलग अलग तरह के प्रोग्रेशंस, राइट, उनका सम ऑफ सीरीज कैसे निकाला जाता है, कुछ वैसे एग्जांपल्स देखे। स्पेशल ट्रायंगल्स देखे जिसमें 37 डिग्री 53 डिग्री होता है, तो साइन 37 साइन 53 ये सब कैसे निकाला जाता है, राइट। साइन टैन कॉस के बारे में पढ़ा, टू एंगल वाले फॉर्मूलाज देखे, काफी कुछ देखा, राइट। तो हमने कहा था कि वो है मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट ए। इसको हम दोबारा कंटिन्यू कब करेंगे, जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देख लें। ऑल्दो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह जनरली नहीं पढ़ाया जाता, उसको बस एक ऊपर ऊपर से देख लिया जाता है, बट ये मानकर कि ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर के मैंने पास्ट ईयर पेपर्स में काफी अच्छा वेटेज देखा है, राइट, और काफी अच्छे से इस चैप्टर से सवाल आते हैं,
तो आप लोगों को हमने इस टॉपिक को भी काफी अच्छे से पिछली कुछ क्लासेस में कवर किया, राइट। आप लोगों के साथ साथ ये होने के साथ हमने एक छोटा सा प्रिलिमिनरी टेस्ट भी लिया, राइट। और उसके बाद की 2 क्लासेस हमने टेस्ट के डिस्कशन को दिया, राइट। टेस्ट के डिस्कशन को दिया, अच्छे से हमने डिस्कस किया कि भाई जो क्वेश्चंस थे टेस्ट के उसमें से आप कौन से बना पाए, नहीं बना पाए, नहीं बना पाए तो रीजन क्या थे, राइट। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि आप टेस्ट पेपर को रीसॉल्व करो और सबमिट करो, राइट, ऑन गूगल क्लासरूम। तो जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं इस क्लास में, राइट, वो लोगों को देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गूगल क्लासरूम, राइट, गूगल क्लासरूम। तो अगर इफ यू आर नॉट येट कनेक्टेड, आई विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स। प्लीज मुझसे एक बार हमारे ग्रुप पर या फिर जस्ट मैसेज मी और मुझसे पूछ लीजिएगा गूगल क्लासरूम का कोड क्या है, तो आई विल सेंड यू दैट कोड, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने आपको कहा कि टेस्ट रिसॉल्व करो। नाउ माय क्वेश्चन इज, जिन जिन बच्चों ने टेस्ट रिसॉल्व करके मुझे सेंड किया हो वो सब हैंड रेज करेंगे। एवरीवन हु हैव रीसॉल्व्ड द पेपर मेरे समझाने के बाद और उन्होंने वो क्लासरूम पर अपलोड कर दिया है, राइट, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले you were told to do this. If you have done, raise your hand. Yes, बच्चा लोग। And I think those classes are also there, right? उसके लिए लिंक आपको भेजा जा चुका है उन क्लासेस का भी, दोनों टेस्ट डिस्कशंस का। तो अगर आपने वो काम फिनिश कर लिया है तो रेज योर हैंड। यस क्लास, ओके। वीरज ने कर लिया है, कार्तिकेय हैज डन इट, आयुष हैज डन, तेजस हैज डन, ठीक है। आई कैन सी दैट चैतन्य, कुशल, महिवेश, राहुल आर येट टू डू, ठीक है। अच्छा, ओके, हैंड रेज रखेंगे सभी लोग, हैंड रेज रखेंगे वो सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट पेपर सॉल्व करके सबमिट कर दिया है टू मी ऑन गूगल क्लासरूम। आई हैव एक्सेस टू इट बट आई वांट टू सी इट हियर आल्सो। हाँ जी, बोलो, हैंड रेज रखो सभी लोग जिन्होंने टेस्ट पेपर रीसॉल्व करके सबमिट कर दिया है। काइंडली रेज योर हैंड्स बच्चा लोग, कीप द हैंड रेज्ड, कीप द हैंड रेज्ड क्लास। Test resolved. I can see Veeraj, Ayush, Chaitanya. चैतन्य आपने सबमिट किया है, जिन्होंने सबमिट कर दिया है हैंड रेज रखो, कार्तिकेय, आयुष, वीरज, ठीक है। हाउ अबाउट द अदर्स? कुशल, कब तक सबमिट करोगे? यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, मुझे सब लोग मैसेज कीजिए, चैतन्य, कुशल, महिवेश, नमन, राइट, सॉरी नमन नहीं, राहुल एंड तेजस, राइट, जो पहले अब तक क्लास में थे, राइट, वो कब तक सबमिट कर देंगे मुझे डेट भेजो क्विकली। चैतन्य, कुशल, महिवेश, राहुल एंड तेजस, अगर आपने अभी तक टेस्ट सबमिट नहीं किया है मुझे तो मुझे मैसेज करिए सभी लोग, कब तक सेंड करेंगे डेट। Okay, Tejas has done it. She has not uploaded. Will upload after class. Chaitanya will send by 7 p.m. ठीक है। कुशल will send by 9 p.m. ठीक है। और others? राहुल, बच्चा हो गया है क्या सबमिट? Send me a message सभी लोग quickly. Mahevish, today by 8 p.m. ठीक है। राहुल, so tomorrow morning, ठीक है। But make sure कि submit हो जाए, ठीक है, because we have discussed this in class, so I want to see this in my Google account। हमारे Google Classroom में सबको सबमिट करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद डिलेज नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर दिस नो मोर डिलेज। जिस दिन जो काम दिया जा रहा है मेक श्योर करो कि उतने गिवन इंटरवल में वो सबमिट करना है, ठीक है। ऑल राइट, okay, so okay class, you can bring your hands down, thank you। Now after doing units and measurements, right, there are some topics like parallax क्या होते हैं, right, कैसे यूज होता है parallax का, किस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, राइट। प्लस मैंने आप लोगों को याद है एक लिस्ट दिया था, एक लिस्ट दिया था डायमेंशंस याद करने के लिए। किन किन बच्चों ने सारे डायमेंशंस उसमें से, जैसा मैंने स्केड्यूल बनाया था उसमें 37 डायमेंशंस थे, 37 डायमेंशंस थे, राइट। और मैंने कहा था हर दिन 5 करने हैं, याद आ रहा है, हर दिन 5 करने हैं।
तो किस बच्चे ने हर दिन 5-5 डायमेंशंस लिख लिख के याद किए हैं? हैंड रेस करो सभी लोग, हैंड रेस करो एवरीवन। आपको ये होमवर्क मिला था राइट, फर्स्ट सेकंड क्लास में डायमेंशंस के मैंने लिस्ट दिया था, किन किन बच्चों ने याद कर लिए हैं 37 के सारे डायमेंशंस लिख लिख के? यस, हैंड रेस करो क्विकली। आई एम वेटिंग बच्चा लोग, क्विकली फटाफट। ठीक है, सो आई कैन सी आयुष शायद उस समय क्लास में नहीं थे, चैतन्य यू वर देयर आई बिलीव, महेविश, चैतन्य, तेजस एंड धीरज, आप लोगों के लिए एक और अवसर है, वन मोर अपॉर्चुनिटी। सो अभी आई सेंड दिस डॉक्यूमेंट अगेन ऑन द ग्रुप, ठीक है? इंश्योर करो कि इस डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज है, उसमें 37 डायमेंशंस हैं। आपको हर दिन सिर्फ 5 याद करने हैं, सिर्फ 5। और कैसे याद करने हैं? याद आ रहा है? लिख लिख के याद करने, यू हैव टू राइट इट ट्वाइस अ डे। लिखने में लगेगा 5 मिनट, है ना? तो ऐसा नहीं कहना है कि सर टाइम नहीं है, टाइम है ना? हमको डिसाइड करना है उस टाइम का हमको कैसे अच्छे से यूज करना है। 5 मिनट्स सबके पास होते हैं, सबके पास होते हैं, ठीक है? तो आज से 5 मिनट्स, अगर अभी भी शुरुआत नहीं की है, शुरुआत करो। और मुझे एक हफ्ते में हर दिन, मैंने आपको याद है कहा था, लिखना है इसको, सुबह भी शाम को भी, और शाम में क्लासरूम पे अपलोड करना है। आज से शुरू करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है? राइट, तो हमने इस तरह से कुछ सिंपल चीजें देखा, राइट, कुछ अच्छे टॉपिक्स देखा, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया। अब हम वापस से मैथमेटिकल टूल्स पार्ट बी में आ रहे हैं। यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन क्लास, थैंक यू। अब हम आ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2 में, है ना? तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम कुछ खास तरह के ग्राफ्स देखेंगे, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ग्राफ से जुड़ी हुई सारी चीजें, ठीक है? सर्कल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, ऑल्दो हमने देखा है, फिर भी थोड़ा सा और देखेंगे। देन हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। ऑर्डर अलग हो सकता है बट देखेंगे एक एक करके, ठीक है? देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनना, जैसे एक बिल्डिंग की नींव होती है ना, जैसे हम एक नींव बनाते हैं किसी बिल्डिंग की, नींव का मतलब होता है द बेस ऑफ द हाउस। तो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, राइट? तो फर्स्ट आपने देखा होगा जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर सबसे पहले नींव बनाई जाती है। दिस इज द बेस ऑफ द हाउस, है ना? तो हमारे मैथमेटिक्स का, हमारे फिजिक्स के लिए दीज मैथमेटिकल टूल्स आर द बेसिस, राइट? इस बेस पर ही जो हम अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट, इस बेस पर ही बहुत ही अच्छे से हम लोग क्या बनाएंगे? अपने पूरे 11th और 12th की इमारत बनाएंगे। लेकिन अभी अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, राइट, और काम अपने सही समय पर नहीं किया, टालते गए, तो क्या होगा? आपकी बिल्डिंग कमजोर बनेगी। और जब यूज करने की बारी आएगी, जब आप इस बिल्डिंग में रह रहे होगे, राइट, रह रहे होगे से मेरा मतलब है जब आप एग्जाम्स दे रहे होगे, तो वहां पर वो बिल्डिंग अगर ढह गई, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? अगर यहाँ खुशी खुशी रहना है, मतलब खुशी खुशी एग्जाम देने हैं, राइट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस फिजिक्स की बिल्डिंग में खुशी खुशी रहने के लिए मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सम्मान के साथ करना पड़ेगा, राइट, राइट, लव एंड रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है? लव एंड रिस्पेक्ट देना किसी सब्जेक्ट को मतलब होता है कि उसको सही टाइम पे सही समय देना, ताकि यू कैन प्रोग्रेस वेल, राइट? क्लियर है सबको? तो इंश्योर करो, अगर अभी तक आपने काम शुरू नहीं किया है तो यू डू इट, है ना? और जहां दिक्कत आए मुझसे डाउट क्लास, प्रैक्टिस क्लास में वो सब चीजें पूछो। क्लियर है सबको?
बच्चों क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स हमारे फिजिक्स का बेसिस है। अगर वो उसका हमने मेहनत नहीं की, उस पर कोशिशें नहीं की अपनी तरफ से, सो बिल्डिंग ढह जाएगी बाद में। और उस बिल्डिंग को मस्त गजब का बनाए रखना है तो मैथमेटिक्स को मजबूत करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो टुडे हम ये टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। हम क्या देखने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये लिख लो पहले जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, द समरी फ्लो। इसको एक बार लिख लो और जैसे ही लिख लो हैंड रेज करो क्लास। यस, आई एम वेटिंग। हैंड रेज करो as soon as you are done writing whatever I have written on the board. और याद रखना जो मैंने आज आपको कहा, याद दिलाया है टेस्ट को रीसबमिट करने वाली बात, वो सबको करना है, ठीक है, विदाउट एनी पोस्टपोनिंग्स, ठीक है। ओके, यस बच्चों, क्विकली हैंड रेज करो जैसे ही लिख लो। whatever is written on the board, write it down in your lecture notes and raise your hands. Yes. So I can see Rahul has written, Naman has written, Tejas has written, Mahesh, Dheeraj, Kartikeya, Kushal, सबने लिख लिया है। आयुष एंड चैतन्य आर राइटिंग। ओके, लिख लो। लिखते ही मुझे इंडिकेट करो बाय रेजिंग योर हैंड्स। बाकी लोग हैंड रेज्ड रखेंगे, ठीक है। ओके, ओके, सो चैतन्य हैज आल्सो डन राइटिंग। और ये सब जो इलस्ट्रेशंस हम बनाते हैं ना, इसको मैंने क्या कहा याद है? मैंने आप लोगों को बताया था, दिस थिंग इज कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन। आपको ये भी बनानी है अपनी कॉपी में, होना चाहिए। इससे याद आएगा कि सर ने कैसे समझाया था कि कितना इंपॉर्टेंट है बेसिस को समझना, बेसिक्स को एकदम क्लियर रखना, ताकि आपका जो पूरा बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी रह सके, राइट। So this is 11th and 12th physics. Okay, good. So I believe everyone is done writing. Thank you class. You can bring your hands down. Let's start off. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। हेडिंग दो सब लोग। So just a second. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है ये चैप्टर और इसके बारे में कुछ और अच्छे से समझते हैं, राइट। सो देखो सभी लोग, राइट, राइट, सो वी विल स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले इसका एक बेसिक मैं आप लोगों को एजेंडा समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोग टेलीविजन में हर तरफ अलग अलग तरह के नंबर्स पढ़ते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक लिस्ट दिया, लेट्स से आई हैव अ लिस्ट हियर विथ मी, इट्स द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। लेट्स से, या पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं आप लोगों के लिए कुछ और लेता हूं। लेट्स से टेम्परेचर्स देखते हैं, ठीक है। एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहले मैं आपको एक इन डेप्थ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है उसका रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। सो वी आर डूइंग दैट। लेट्स से, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, राइट, कि ये है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। तो सपोज आपके कमरे में एक थर्मामीटर लगा हुआ है, यू हैव अ थर्मामीटर इन योर रूम।
ये थर्मामीटर क्या करता है, ये मेजर करता है क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो लेट्स से you have a thermometer, this is the tip, right, of the thermometer. Now it is measuring, यहाँ पर पूरा mercury का level है, right, so this is the bulb of the thermometer. So let's assume that this thermometer is telling you different temperature readings, ठीक है। so let's say आपने सुबह से लेकर रात तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम को आपने t इज इक्वल टू 0 लिया। क्या लिया? t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 मतलब जहां शुरुआत हुई, राइट, उस समय आपने एक टाइमर ऑन कर दिया। क्या ऑन कर दिया? टाइमर। उस टाइमर पर देखा आपने, अच्छा 0 है, ओके, आपने ना उस समय टेम्परेचर लिख लिया, अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर। लेट्स से उस समय टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ? दिन चढ़ता गया। तो आपने क्या किया? आपने हर 4 घंटे के बाद टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग लिया, राइट। तो सपोज आपने सुबह 6 बजे पहली रिकॉर्डिंग लिया था, तो 10 बजे अगली रिकॉर्डिंग लिया आफ्टर 4 आवर्स, राइट। तो आई राइट t is equal to 0, फिर t is equal to 4, where which this time is in hours, this time is in hours, ठीक है। 4 आवर्स के बाद आपने देखा कि टेम्परेचर हो चुका था 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद आपने फिर से 2 बजे रिकॉर्डिंग लिया, 2 PM पे। सो आई एम राइटिंग हियर द टाइम्स, ठीक है। So this was at 6 AM in the morning. Then let's say you took the reading at 10 AM in the morning, right? फिर उसके बाद आपने 2 बजे फिर से रीडिंग ली। उस समय सुबह से कितने घंटे हो चुके हैं? 8 घंटे। तो you have 8 hours spent, right? अच्छा, अब आपने देखा टेम्परेचर जो हो गया है that is nearly 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर से रीडिंग लिया। अब की बार कितने बजे? अब की बार फिर 4 घंटे बाद, मतलब शाम के 6 बजे। अब आपने क्या देखा? टेम्परेचर अब बढ़ता नहीं, अब क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो अगेन 4 आवर्स एडेड, ठीक है। अब टेम्परेचर हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपने चेक किया एट इवनिंग, उस समय टेम्परेचर हो गया है let us take this as again 30 डिग्री सेल्सियस। फिर से कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, फिर आपने फिर से 4 घंटे बाद टेम्परेचर चेक किया। अब 4 घंटे बाद मतलब रात के 10 बज चुके हैं, राइट। और इफ यू से द टाइम फ्रॉम 0, कितने घंटे हो गए? add 4 to it, right? So you have 16 hours from the morning. You have been measuring time again and again. Now you see temperature again comes back to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपने क्या किया? सुबह से लेकर रात तक अलग अलग टाइम्स पर टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है। तो अब वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं अपन कि आज का मिनिमम तापमान या जैसे न्यूनतम तापमान कहते हैं, आज का न्यूनतम तापमान इतना और आज का अधिकतम तापमान इतना, राइट। दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, है ना। तो यहीं पर सबसे बड़ा एप्लीकेशन आएगा आपका डिफरेंशिएशन का। हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, मिनिमा एंड मैक्सिमा। क्या पढ़ेंगे? मिनिमा एंड मैक्सिमा। मैंने आपको एक फ्यूचर का इनसाइट दे दिया, हम क्या पढ़ने वाले हैं बाद में इस चैप्टर में, समझ में आएगा। तो अब देखो डिफरेंशिएशन में हम क्या समझते हैं। पहला, हम सबसे पहले मैंने आपको एक डेटा दिया मतलब जो भी हो रहा है टेम्परेचर के टर्म्स में सुबह से लेकर रात तक, उसको हमने एक टेबल में बना लिया। अब हम क्या करेंगे? इस टेबल का हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। याद है हमने कैसे सीखा है ग्राफ बनाना? याद करो। इस ग्राफ को चलो एक काम करते हैं, यहां बनाते हैं ऑन द फ्रेश पेज, ठीक है, फ्रेश साइड। So let's say we have a graph between temperature and time. हम देखना चाह रहे हैं टाइम टेम्परेचर और टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है, राइट। सो वी आर काउंटिंग फ्रॉम, कैसे प्लॉट कर रहे हैं? ऑन द y एक्सिस वी हैव टेम्परेचर, दिस इज y एक्सिस। ऑन द x एक्सिस वी हैव टाइम, ठीक है। दिस इज डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम इज इन आवर्स, है ना। नाउ अब हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? ध्यान से देखना, हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। फिर हर 4 घंटे में हमने रीडिंग ली है, तो मैं स्केल को
ऑन द एक्स एक्सिस क्या ले रहा हूं कि हर एक यूनिट का मतलब है 4, तो दिस इज 4, 8, राइट, 12, 16, ठीक है। नाउ आप चाहो तो इसका डबल भी ले सकते हो, चाहो तो 2 2 की रीडिंग लो, ठीक है। सो you might have then that way, this is let's say 2, 4, 6, 8, 10, right, 12, 14, right, 16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइम यहां पर टेम्परेचर मार्क करते हैं, राइट। तो लेट्स से टेम्परेचर इज इन स्केल्स ऑफ 5, ठीक है। सो दिस इज 5, देन दिस इज 10, दिस इज 15, 20, 25, ठीक है, 30। हम मार्क कर लेते हैं 35, क्योंकि 35 भी है, और फिर 40, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो, ग्राफ के लिए पहले पॉइंट्स मार्क करते हैं। सबसे पहले हमने पहली रीडिंग कब ली है, 0 पर, कितनी है, 25, इसका मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। अगला देखो, 0 T इज इक्वल टू 4 पर टेम्परेचर कितना है, 30, तो T इज इक्वल टू 4 पर 30 तक पहुंच गए अपन, ठीक है, ऐसा। नाउ अगला क्या दिया है, अगला है T इज इक्वल टू, राइट, अगला है T इज इक्वल टू 8 पर 35, T इज इक्वल टू 8, ये है, यहाँ है 35 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 पर 30 पे आ गया, फिर से 12 पर फिर से 30 पर आ गया, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, फिर 16 पर वापस 25 पर आ गया, ऐसा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन से नहीं, नॉर्मल कर्व लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ग्राफ दिख रहा है सबको। अब ये जो कर्व बना, ठीक है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, राइट, टाइम इज इन आवर्स, टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो अब इस तरह के ग्राफ्स में ये जो लाइन आई है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर कैसा हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, यहाँ पे टी कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। इनफैक्ट आई विल ड्रॉ इट विथ लेट्स से सम अदर कलर, सो लेट अस टेक, या यहाँ पर टेम्परेचर हो गया टी मैक्स, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूं मैक्सिमा, क्या कहता हूं, मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, सपोज हमारे पास क्या होता है, रात को हम फिर से अपनी रीडिंग और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब देखो, अभी तक आपने रात के 10 बजे तक रीडिंग ली थी, रात के 2 बजे, राइट, आप फिर से रीडिंग लेते हो 2 o'clock in the night, 4 hours later again, so now it is 20 hours from yesterday, ठीक है। उस समय आपने देखा टेम्परेचर हो गया है और भी कम, कितना, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आपने फिर 4 घंटे के बाद रीडिंग ली, मतलब अगले दिन सुबह 6 बजे, सो नाउ इट्स 24 आवर्स एग्जैक्ट, ठीक है। और अब की बार रीडिंग हो गई है टेम्परेचर की फिर से 25, ठीक है। तो अब देखना यहाँ क्या होता है, ग्राफ इसके भी बनाते हैं, इसको भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेट अस नेम दिस एज 18, ठीक है, 20, 22 एंड दिस इज 24, ठीक है। तो 20 पर हमारे पास कितना आया है, वी हैव 20 पर इट इज
20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 आवर्स पर इट्स 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये है 20 और यहाँ से भी 20, ठीक है, ओवर हियर। तो ये मेरा एक और ग्राफ बन गया, ये वाला पॉइंट, राइट। उसके बाद 24 पर देखो सभी लोग, 24 पर फिर से ग्राफ कितना हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, 25, ठीक है, मतलब यहाँ आ गया ग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ को और एक्सटेंड करते हैं, ऐसा ऐसा बन रहा है। तो अब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं, यहाँ जो बना इसको हम कहते हैं मिनिमा। क्या कहते हैं क्लास, मिनिमा। क्यों कहते हैं मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, ये क्या अज्यूम कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर रहा है। तो मैं इसको लिखता हूं टी मिनिमम। देखो सब लोग, इसको हम क्या लिखते हैं, टी मिनिमम, है ना। हमने क्या देखा बेसिकली, हम लोगों ने एक खास कॉन्सेप्ट देखा, राइट। इसको मैंने नाम बताया आपको, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, राइट। हमने सुबह से लेकर रात तक अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर मेजर किया और टेम्परेचर को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कर्व निकल के आया है ना, ये जो पूरा इस तरह का कर्व है, इसको आप अगर एक सिंपली टी वर्सेस मतलब टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ में बनाना चाहो तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। देखो, बिना कुछ और ज्यादा लिखे, बिना ज्यादा डिटेल्स दिए, ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखेगा। ये 24 घंटे का ग्राफ है, राइट, 24 आवर्स का ऐसा कुछ ग्राफ आया है, जिसको मैंने क्या कहा, ये वाला पॉइंट जहां सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमा, राइट, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मिनिमा। अच्छा, अब सब लोग डेफिनेशन लिखो मैक्सिमा की। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक नोट्स विथ यू, टेक अ नोट विथ यू, मैक्सिमा ऐसा लिखो, मैक्सिमा, और ब्रैकेट में यहां पर लिखना लोकल, ब्रैकेट में लिखना लोकल, ठीक है। हाँ, द पॉइंट एट विच लिखो, द पॉइंट एट विच फंक्शन अज्यूम्स मैक्सिमम वैल्यू, द पॉइंट एट विच फंक्शन अज्यूम्स मैक्सिमम वैल्यू। The point at which the function assumes maximum value, ठीक है। मिनिमा में क्या लिखोगे, सेम फंडा, लेकिन क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, राइट, एवरीथिंग रिमेन सेम, बस मैक्सिमा की जगह क्या लिखोगे, मिनिमा। पूरा लिखो, राइट इट डाउन एवरीवन, द पॉइंट एट विच द फंक्शन assumes minimum value। फ्रॉम, यहां एक और बात ऐड करना, फ्रॉम नियर वन, नियर पॉइंट्स या फ्रॉम पॉइंट्स इन द विसिनिटी, फ्रॉम विसिनिटी मतलब नेबरहुड, फ्रॉम पॉइंट्स इन द नेबरहुड, मतलब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैं पॉइंट्स को नेम दे रहा हूं, ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट एफ है, ये अपने आजू बाजू वाले पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, आजू बाजू वाले पॉइंट्स मतलब बी डी, वैसे ही एफ के लिए ई और जी, तो इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, डजंट मीन कि फंक्शन की वैल्यू उससे कहीं और लो नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो फंक्शन ऐसा भी कुछ हो सकता है, ध्यान देना, बॉटम राइट में फंक्शन ऐसा जा सकता है, राइट, डजंट मीन कि ये मिनिमा नहीं होगा, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। कहने का मतलब अपने नियरेस्ट नेबरहुड में, मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, ध्यान से सुनना, अपने नियरेस्ट नेबरहुड में अगर फंक्शन की वैल्यू बाकियों से ऊपर हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू आजू बाजू वाले पॉइंट्स में नीचे हो जा रही है, तो वो मैक्सिमा या वो मिनिमा कहलाता है। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं,
फंक्शन अगर अपने नियर अबाउट पॉइंट्स में, यहां देख लो, अपने नियर अराउंड पॉइंट्स में यहाँ के और यहाँ के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, यहाँ के और यहाँ के रिस्पेक्ट में मिनिमम है, तो वो मिनिमा कहलाएगा। और इनको अपन क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। इसीलिए मैंने इसलिए यहाँ टॉप पे क्या लिखा है? लोकल। तो अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम पॉइंट्स इन द विसिनिटी। लिख लो सब लोग, ये कौन से मैक्सिमास है? फ्रॉम पॉइंट्स इन द विसिनिटी, मतलब विसिनिटी या आजू बाजू वाले पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू अज्यूम करते हैं। पॉइंट्स इन विसिनिटी, फ्रॉम पॉइंट्स इन विसिनिटी। क्लियर हो रहा है क्लास? तो इसमें ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। सो देखो, दिस वाज मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, राइट। तो समझ में आ रहा है सबको कि नियरेस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट्स में मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में अगर कंपेयर करोगे, सारे पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करोगे, तो आपको दिखेगा कि अच्छा, ये वाला मिनिमा तो बाकी मिनिमा से भी छोटा है, उससे भी सबसे कम वैल्यू आई है। क्योंकि यहां पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू देखना चाहूं, देखो इस पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू देखना चाहूं, तो वो सारी वैल्यूज में सबसे कम है। तो ऐसे मिनिमा को मैं कहूंगा ग्लोबल मिनिमा। क्या कहूंगा? ग्लोबल मिनिमा। और ये सब क्या है? ये सब है लोकल मिनिमा। क्या है ये? लोकल मिनिमा। और ये क्या कहलाएगा? ग्लोबल। ग्लोबल मतलब सभी में सबसे कम। क्लास प्लीज नोट दिस डाउन। जैसे ही आपने लिख लिया प्लीज हैंड रेज करो। यस क्लास। राहुल, जो आपने डायग्राम बनाया है वो गड़बड़ है। टॉप वाले पॉइंट को अपन मैक्सिमा बोलेंगे राहुल, टॉप वाले पॉइंट को अपन मैक्सिमा बोलेंगे। हमेशा जो भी पॉइंट्स टॉप में है ना, उनको अपन मैक्सिमा बोलेंगे, मिनिमा नहीं, मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। एक साथ में लेते हैं क्वेश्चंस को, एक साथ में लेते हैं डाउट। और अच्छा क्लास, आप लोगों को याद है हमको क्या करना है? जब भी कभी कोई डाउट आए तो उसको लिख लेना है फटाफट, विद इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में उस डाउट को अपनी डायरी में रखना है। ये डायरी सबके पास है, नोटपैड है, नोटपैड रखा है सबने अपने पास? बच्चा लोग, राहुल लिख लो, अपना क्वेश्चन लिख लो, एक साथ में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो अपने पास, ठीक है, एक साथ में लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लास लिख लिया सबने? वंस रिटन प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। आई एम वेटिंग क्लास। हैंड रेज करो सभी लोग, जैसे जो भी बोर्ड पर लिखा है वो आपकी कॉपी पर आ जाए तो हैंड रेज करो। उसी तरह से एक और चीज होगी, जो मैक्सिमा इन सारे मैक्सिमास का सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। लिख लो सब लोग, पहले राइट इट डाउन। राहुल अपने पास अपने नोटपैड में लिखा अपने बच्चा? लिख लो इन 1 और 2 वर्ड्स, क्या पूछना है किस टॉपिक में वो लिख लो। कॉपी में ये आदत बनानी है सबको, जो भी डाउट आ रहे हैं उसको उसी समय कॉपी में लिखो, और एक साथ में जब मौका दिया जाता है तब पूछते जाओ, ठीक है। राहुल बच्चा मैसेज करो, आपने लिख लिया क्या? चैतन्य, हैव यू रिटन इट डाउन एवरीथिंग? ठीक है, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ यू ऑल हैव रिटन इट डाउन ऑन द स्क्रीन, जो भी लिखा है वो अपने पास लिख लो। कोई डाउट आता है तो डायरी में लिख लो। जो छोटा नोटपैड दिया है ना अपन ने, लेक्चर नोट के साथ साथ एक छोटे नोटपैड में डाउट लिखते चलना है, ठीक है, जो अपन साथ में पूछेंगे। तब तक के लिए मन शांत एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट, ठीक। ओके, सो हियर वी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पार्ट। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, अब ये क्या था जो अभी हमने देखा? ये था एप्लीकेशन। क्लास यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू। ये जो हमने देखा ये था मैक्सिमा और मिनिमा, एक तरह का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग, एक एक करके हैंड डाउन कर लो, ठीक है सब लोग। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लिखता हूं, देखो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां पर x के चेंज होने से, इफ x चेंजेस, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां पर ना सबसे पहले एक बात समझो, इसको हम क्या बोलते हैं, नोटेशन समझो। दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड करना मतलब किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करना, यानी कि उसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल की वैल्यू से डिसाइड होती है। तो हमारे पास यहां है y एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक दूसरा वेरिएबल है कौन सा, x। कौन सा, x। वो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखो सब लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक टर्म लिखो सब लोग अपने पास, फंक्शन। टर्म लिखो सब लोग, फंक्शन। if y मैथमेटिकली, मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए, इफ y मैथमेटिकली, सब लोग लिखेंगे अपने पास, ठीक है, y मैथमेटिकली डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, या यहां लिख सकते हो वैल्यू ऑफ y, इफ वैल्यू ऑफ y मैथमेटिकली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, if value of y mathematically depends on value of x, then y is a function of x, y is a function of x। लिख लो सब लोग ये, write it down। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो इक्वेशन दी है हमारे पास, इस इक्वेशन में अगर मैं x की कुछ वैल्यू रखूं तो उस x की वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यू आएगी, राइट, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब ना हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। सो इसके लिए आई विल टेक वन ऑफ यू, आई एम टेकिंग वीरज, ठीक है। वीरज, मुझे बताओ स्लोप का कुछ मतलब पता है क्या, क्या होता है स्लोप, एक रियल लाइफ एग्जांपल दो, कहां देखा है स्लोप जैसा कुछ, क्या मन में आता है स्लोप बोलते ही। यस वीरज बच्चा बोलो। वीरज, इज योर माइक्रोफोन वर्किंग? हाँ बोलो बोलो। हाँ बच्चा बोलो। तो कोई भी लेज या स्टीप जहां पे रहता है वहां पे पता चलता है कि यहाँ स्लोप है। जहां पर किसी तरह की स्टीपनेस आ गई, if there is some steepness somewhere, right, if there is some steepness somewhere, तो हम उसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। देखना, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन 3 पहाड़ बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल्ड पहाड़। एक, so we have one of them as, just a second class, हमारे पास 3 पहाड़ हैं। This is mountain number 1, right? This one is mountain number 2. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ वीरज, ठीक है, सबसे ज्यादा चढ़ने में आसानी कहाँ होगी, अगर तुम पहाड़ चढ़ना चाहते हो सबसे ज्यादा आसानी कहाँ होगी वीरज? सो फर्स्ट में
है ना, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, बोलो। सर ए। ए में, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ए इज इजीएस्ट टू क्लाइंब, है ना, यस सर। इजीएस्ट टू। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो और अब नीचे वॉक डाउन करना है, यहाँ से नीचे जाना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फिसलने का डर कहाँ है? सपोज अब ये पहाड़ ना होकर एक स्लाइड है, फिसल पट्टी है, राइट, तो सबसे ज्यादा तेजी से नीचे किस में आओगे? दिस वन, ए, बी और सी? सर सी। सी में, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, सी इज easiest to slide. रीजन तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? सर सी की स्लोप बहुत ज्यादा है। सी की स्लोप बहुत ज्यादा है, पक्का? यस सर। ओके, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सी में हम तेजी से नीचे आएंगे क्योंकि उसका स्लोप कैसा है? बहुत ज्यादा। स्लोप कैसा है? ज्यादा के लिए आई वी ऑलवेज यूज दिस अपवर्ड एरो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्लोप ए में कैसा है? कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, ठीक है। ए में स्लोप कम है, इसीलिए वहां पर नीचे आना इज नॉट एज इजी, जबकि सी में स्लोप सबसे ज्यादा है, इसलिए तेजी से नीचे आ पाना इज ऑल्सो इजी। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आप अपने शहर में देखो, राइट, सो यू हैव डिफरेंट रोड्स, राइट, एट डिफरेंट पॉइंट्स, जहां पे कई बार रोड्स में थोड़ी सी ढलान है, राइट, इसी को हम ढलान कहते हैं, द वर्ड ढलान। व्हाट डज इट मीन? यू हैव सम राइजिंग और स्लोपिंग डाउन एरिया, राइट, जहां पर हम इसको कहते हैं मिनिमम स्लोप, दिस वन इज minimum slope, whereas C is maximum slope. हमको दिख रहा है इस C वाले माउंटेन के लिए स्लोप मैक्सिमम है। और कोई रीजन सोच सकता है क्या? लेट मी टेक नाउ, थैंक यू वीरज, गुड, थैंक यू। लेट अस टेक नमन। नमन, कोई और रीजन सोच सकते हो क्या? इन तीनों फिगर में ऐसा क्या है स्लोप के अलावा जो इनको एक दूसरे से अलग बनाता है? कोई स्टार्किंग देखो और सोचो। यस नमन, बोलो। सर एंगल अलग है दोनों तीनों के। एंगल अलग अलग हैं तीनों के? कौन से एंगल? और डिफरेंस डिफरेंस मतलब हाइट ज्यादा है सी की। अभी अपन चलो हाइट भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हाइट बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। वन हाइट इज लीस्ट इन ए, देन इट इज हायर इन बी। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट ऑन दैट। लेकिन चलो अपन एंगल वाली चीज पे फोकस करते हैं। क्या लग रहा है नमन देख के, किसका एंगल सबसे ज्यादा है, किसका एंगल सबसे कम है? बोलो तो। सी का सबसे ज्यादा, ए का सबसे कम है। ओके, सो सी का एंगल सबसे ज्यादा है, उसको अपन सपोज मैं नाम दे रहा हूं इन तीनों को, अल्फा, बीटा और गामा। ये जो साइन है ना, ये कहलाती है अल्फा, ये कहलाती है बीटा, ये कहलाती है गामा। सो देयर आर सम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, है ना, जो आप लोगों को याद रखने हैं, राइट, out of which I have given a few of them in class. I'll request one of you, so I think all those who are from the beginning in the class, they will have that लिस्ट विद देम कि इन अलग अलग सिंबल्स को क्या बोलते हैं। तो ये आप चाहो तो आई आस्क वन ऑफ देम टू अपलोड इट ऑन द ग्रुप, और आप उससे वो लिस्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्या है बेसिकली? आप लिस्ट ऐसा कुछ है कि इसको हम कहते हैं अल्फा, इसको हम कहते हैं बीटा, एक्सेट्रा, ठीक है। खैर, लेट अस मूव अहेड। तो अभी नमन इज सेइंग कि भाई क्योंकि गामा सबसे बड़ा है तो वहां का स्लोप कैसा है? सी का स्लोप कैसा है? सबसे ज्यादा, राइट? एम आई करेक्ट ऑन दैट नमन? यस सर। जो स्लोप है वो किसका सबसे ज्यादा है? सी का, हाँ या ना? फिर किसका है? हाँ सर। और फिर किसका है नमन? ए का। ठीक है। तो अब हमको क्या एक डायरेक्ट कोरिलेशन दिख रहा है क्या नमन स्लोप और एंगल के बीच में? दिख रहा है क्या नमन, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। तो अब सपोज मैं एंगल को जनरली डिनोट करूं थीटा से और स्लोप को डिनोट करूं एम से, एंगल को डिनोट करूं थीटा से और स्लोप को डिनोट करूं एम से। तो एक खास चीज होती है जो स्लोप और एंगल को एक दूसरे से जोड़ती है, उसको हम कहते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। और इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। हमने ऑल्दो देखा हुआ है क्लास में
राइट, बट देन इसका क्विक रिविजन बहुत जरूरी था तो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसी स्लोप को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो। थैंक यू नमन, गुड, राइट। सो नाउ क्लास हैव अ लुक हियर, ठीक है। सपोज अब मैं इन्हीं स्लोप को एज अ लाइन बनाते हैं अपन इसको, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट पेज, I think this was the first page, then we came here, this was second, right? Then we are coming here to the concept of function and the concept of slope, ठीक है। अब slope की हम एक परिभाषा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक परिभाषा देख रहे हैं, that is the definition of slope. Mathematically आप उसको कैसे represent कर सकते हो, so this is y, this is x. अब हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, कौन सी लाइन, कोई भी एक लाइन, सपोज जो यहां से पास करती है एक्स और वाई एक्सिस, ये ग्रीन लाइन, ठीक है। अब ये एक एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल थीटा है, कितना है, थीटा। अब इस लाइन को अपन सपोज ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसी लाइन को, ठीक है। अब भी वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है, किसके साथ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ। कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस तो दिख ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे कहीं पर। मुझे बताना तेजस कि ये एंगल हर जगह चेंज हो रहा है या अलग अलग है, सर सेम है। सेम है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं थीटा, ठीक है। दिस एंगल इज सेम फॉर द एंटायर लाइन, राइट। और अपन ने क्या रिलेट किया है कि स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल और tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम tan थीटा निकाल सकते हैं क्या, देखो मैं क्या करता हूं, यहां से इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं अपन। सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, सपोज p इज x1, y1, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं q, ठीक है। और Q है x2, y2, इसका क्या मतलब हुआ, दैट दिस लाइन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उसका, दैट इज x2, दिस इज y2। y2 लिखने का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑफ। तो दिस इज कॉल्ड एज y2, इसको क्या बोलते हैं, y2, ये y2 है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ y2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये अगर मैंने यहाँ y1 लिखा है तो इतनी वैल्यू का मतलब y1 है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ आई हैव रिटन x1 हियर, दिस इज x1। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन कई बार बच्चे पूरा 11th क्रॉस कर जाते हैं, बट स्टिल उनको पता नहीं होता कि x1 क्या है, y1 क्या है। दीज आर डिस्टेंसेस, कहां से, ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहां x और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। एंड दीज आर डिस्टेंसेस x1, x2, y1, y2, ठीक है। अब एक बात बताओ तेजस, एक बात बताओ कि मुझे अगर ये लेंथ मेजर करनी है, देखना हाँ कौन सी, ये वाली लेंथ अगर मेजर करनी है तो मुझे बता सकती हो कितनी होगी ये वर्टिकल लेंथ, देखकर यहाँ पर फिगर्स को। y2 minus y1। वेरी गुड, बिल्कुल एविडेंट है हमें कि दिस लेंथ इज y2 minus y1। मैं एक बात पूछना चाहूंगा नाउ फ्रॉम राहुल। हाँ राहुल बच्चा बताओ, अब ये वाली लेंथ कितनी है, दिस वन, x2 minus x1। वेरी गुड, x2 minus x1, ठीक है। अब क्लास ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, दिस इज a, अभी हमने नाम तो दे दिया है, राइट, सो आई एम रीराइटिंग इट, दिस इज p, राइट, दिस इज q एंड लेट्स से दिस इज r, है ना। तो tan थीटा को p q r के टर्म्स में बोल सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ, थीटा क्या है, थीटा इज दिस एंगल, थीटा इज दिस एंगल व्हिच this line PQ is making with the horizontal। हाँ बच्चा बोलो। y2 minus y1 upon x2 minus x1। वेरी गुड, इसको आप और क्या लिख सकते हो, QR upon PR, राइट राहुल, लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। अच्छा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। अच्छा क्लास याद करो, हमने एक सिंबल देखा है, कौन सा सिंबल, उसको अपन बोलते हैं, ट्रायंगल शेप में रहता है, इसको क्या बोलते हैं राहुल, याद है क्या, डेल्टा। डेल्टा, है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या मतलब होता है राहुल? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। वेरी गुड, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अब हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्या लिख रहा हूं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है क्या ये राहुल, ये वाली बात? यस सर, ओके, यस सर। अच्छा अब देखना क्लास ध्यान से, ठीक है। ये क्या था, ये तब की वैल्यू थी जब डेल्टा y बहुत बड़ा था। कैसा था? बहुत बड़ा, राइट। लेकिन अब जैसे इतना वैल्यू था, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, इस ट्रायंगल को स्मॉल करता जाऊं और स्मॉल करता जाऊं और स्मॉल करता जाऊं, तो क्या हो रहा है, डेल्टा वाई कम हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? उसी प्रपोर्शन में डेल्टा एक्स भी कम होता जा रहा है, राइट। तो देयर इज ये आप लोग मैथमेटिक्स में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ उसका एक सार बता रहा हूँ, अ समरी ऑफ इट, जो आपको हेल्प करेगी आपके फिजिक्स में, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज मैथमेटिकल टूल। ये हम पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, टूल्स है। मतलब जैसे अपन घर में स्क्रू ड्राइवर होता है, पेंचेस होता है, पेचकस होता है, राइट। सो दीज थिंग्स हेल्प यू इन स्क्रूइंग योर नट्स, राइट। कहीं पर anywhere you have to screw something, right? कहीं कोई नेल फिक्स करना है तो आपके पास हैमर होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से फिजिक्स का नेल फिक्स करना है तो उसके पास आपके लिए मैथ्स का हैमर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब देखो इस टूल में हम क्या कहते हैं, देयर इज अ साइन ऐसी, इसको हम अपन कहते हैं एरोहेड साइन को, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू। क्या कहते हैं राहुल? टेंडिंग टूल। टेंडिंग टू, राइट। सो लेट्स से इसका मतलब होता है वन वैल्यू अप्रोचिंग द अदर वैल्यू। मतलब अगर ए बी को अप्रोच कर रहा है, सो अप्रोच करने का मतलब ये होता है, जैसे देखो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाना बट एग्जैक्टली इक्वल ना होना, है ना। उसको लिखो सब लोग, एवरीवन राइट दिस डाउन, दिस साइन, everyone will write this sign is called tending to मतलब बेसिकली इट इज प्रोनाउंस्ड एट, ये कॉल्ड तो नहीं है, ये बहुत इनफॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको किसी एग्जाम में लिख के मत आना, ठीक है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। इसको हम कहते हैं टेंडिंग टू। टेंडिंग टू मतलब अगर सपोज x की वैल्यू अभी 5 है, ठीक है। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या लिखता हूं? y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं सपोज x इक्वल टू, अगर मैंने यहां पर x इक्वल टू 5 लिख दिया तो y कितना हो जाएगा राहुल? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x। अगर x 5 है तो y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। सिंपल है, राइट। अच्छा अभी तक क्या था, हमने इक्वल टू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कोई दो वैल्यूज का एग्जैक्टली एक जैसा हो जाना, राइट। लेकिन अगर मैं आपको लिखूं कि x इज टेंडिंग टू 5, x इज टेंडिंग टू 5, तो टेंडिंग टू का मतलब है नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट वेरी क्लोज टू इट। इसको सब लोग यहाँ नोट के फॉर्म में लिखो। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अ वैल्यू, सो इसको अपन और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। यहां पर सब लोग लिखो, एग्जाम्पल के साथ लिखो सभी लोग, ताकि याद रहे सर ने कैसे बताया था, राइट। इक्वेशन लिखो पहले, y इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना। फिर यहां लिखना when we write, सब लोग नोट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये दिस इज अ नोट। सो when we write x tending to 5, it means, now लिखो, it means x is very close in value, very close in value to 5। इसका मतलब x की वैल्यू 5 के बहुत नजदीक है बट 5 नहीं है। इट इज बट इट इज नॉट इक्वल टू 5। फाइव के बहुत नजदीक है बट 5 नहीं है। क्या कहने का मतलब है? एग्जाम्पल, x कैन बी
x can be 4.999 or 4.995 or 4.990 और 4.900 एक्सेट्रा। ऐसी कोई वैल्यू है, बट क्या है ये हम नहीं जानते। इतना ही जानते हैं कि x 5 के नजदीक आ गया है। It has come close to 5, so I say x is tending to 5. X is tending to 5. Therefore y will tend to 4. y will tend to 4. कैसे किया? सब्स्टिट्यूट तो हमने x की जगह 5 कर दिया, लेकिन कहेंगे क्या y 5 के इक्वल नहीं है। y क्या कर रहा है? बोलो क्या बोलेंगे इसको राहुल? y is कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? tending to 4. Tending, y is tending to 4. y is tending to 4. कब टेंड करेगा? सर तो इसमें x की वैल्यू when सर बोलो। इसमें x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, जो tending to लिखा है? नहीं, it has to be very close. It has to be very close. Generally points में, right? Generally points में very close. 2 या 4 या 8 ऐसा कुछ भी नहीं। कोई ऐसी वैल्यू जो x के बहुत 5 के बहुत नजदीक हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता कि x is tending to 2.0001, तो ऐसे केस में हो सकता है x 2 होता, हो सकता है x 0.000 होता, हो सकता है ये होता 2.011, राइट, 2.0011, या फिर x होता 2.0012 ऐसा कुछ, राइट। अगर x टेंडिंग टू 2.0001 होता तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये सारी वैल्यूज को नजदीक होना पड़ेगा। अगर x के इक्वल हो रहा है, एक मिनट राहुल एक मिनट, सारे डाउट्स आखिरी में लेते हैं, राइट। पहले बताओ इतना क्लियर है क्या? y is tending to 4 when x is tending to 5। ये क्लियर है क्या? पहले ये बताओ। यस सर। ओके, सारे डाउट्स लिखो राहुल, राइट। वील टेक देम ऑल टुगेदर बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, राइट। बस अभी इतना मान के चलो कि x को नजदीक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक्स अपन लेते हैं राहुल, ठीक है। पेशेंस ऑन दैट, राइट। ऑल राइट, थैंक यू फॉर द पेशेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्लीज राइट डाउन स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव, उसको लिख लो, हम कंसिडर करते हैं। नाउ क्लास देखना, ठीक है। तो अब जब भी कभी कोई एक वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू के नजदीक आ जाती है तो हम एक टर्म यूज करने लगते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। व्हेन वन वैल्यू, ये सब ना आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, राइट। तो इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आप अपने आप ये क्लासेस में पढ़ोगे, राइट। और अगर चीजें आप मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हो तो उतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है फिजिक्स के लिए उतना मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। व्हेन वन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू अनदर वैल्यू, लिखेंगे सब लोग इसको। व्हेन वन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू अनदर वैल्यू, राइट, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, वी यूज the concept of limits। ठीक है, ये सब आपके रफ नोट्स हैं, ठीक है। ये स्कूल में लिखने के लिए नहीं है, राइट। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिमिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं LIM से या फिर LT से, LIM से या फिर LT से, राइट। तो सपोज अभी क्या हो रहा था, अगर मेरे पास y दिया हुआ है x-1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, क्या लिमिट लगा दूं? देखो, इसको बोलते हैं लिमिट यूज करना। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5, y की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू, ये यूज करने का तरीका है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी अजीब सा लग रहा है, अरे सर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ओहो ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। कोई बात नहीं, हर चीज पहली बार कभी ना कभी इंट्रोड्यूस होती है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आप कभी ना कभी फर्स्ट टाइम सीखते हो। So take it with all the normalcy, although wonder should be there, but no tension, ठीक है। wonder होना अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनो, राइट। और डाउट्स को नोट डाउन करते चलो।
मैंने लिखा x टेंडिंग टू 5, लिमिट ऑफ y की जगह अब मैं लिख दूंगा x माइनस 1। क्या लिख दूंगा? x माइनस 1। तो जब x की वैल्यू 5 तक पहुंच रही है तो ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 1 किसके नजदीक पहुंचेगा? किसके नजदीक पहुंचेगा? 4k, राइट? तो हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ y, इसको क्या बोलते हैं देखो, व्हाट, हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड? इसको कहते हैं लिमिट ऑफ y, लिमिट ऑफ y व्हेन, जो अभी हमने कहा ना यहाँ पे, बेसिकली इतना जो हमने लिखा वो लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो आप मैथमेटिकली क्विकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, when limit of y when x tends to 5, when x tends to 5, उसको आप लिखते कैसे हो या कहते कैसे हो? lt of y, और यहां लिमिट लिखने के नीचे हम लिखते हैं x टेंडिंग टू 5, देन y की वैल्यू डालो x माइनस 1, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी फील्ड में। लेट्स से अब की बार एग्जांपल है, ध्यान देना, ठीक है एवरीवन। यू हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं लिखता हूं फाइंड आउट लिमिट ऑफ y when x tends to 1, right? Find the limit of y when x tends to minus 1. Find the limit of, अब लिमिट में मैं LIM लिखता हूं। मैंने क्या कहा था? लिमिट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो LIM लिख के या LT लिख के। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं LIM लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2y। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, ऑल्दो इसका बहुत वृहद ज्ञान है, ठीक है, ये जो मैं अभी समझा रहा हूं ये बहुत माइन्यूट वर्जन है ऑफ समथिंग जो आप बहुत एक्सप्लिसिटली मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, उसका एक बहुत माइन्यूट वर्जन है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सो दैट यू ऑल आर एबल टू क्लियरली अप्लाई दिस, ठीक है, इन योर एग्जाम। अच्छा, प्लस यहां लिखता हूं लिमिट ऑफ अब की बार y स्क्वायर। क्या लिखता हूं? y स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो लिमिट ऑफ y प्लस 5, कब? when x is tending to 0। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक एक करके आप लोगों को जवाब देने हैं। सो लेट मी टेक वन बाय वन ऑल ऑफ यू। सो वील स्टार्ट विद कुशल। ठीक है, ऑलराइट, सो आई थिंक वील स्टार्ट विद वन ऑफ यू, किसी भी एक से शुरू करते हैं। आई थिंक मुझे शुरुआत में चैतन्य दिख रहा है। चैतन्य, इज योर माइक वर्किंग? अगर हाँ तो आई थिंक आपका माइक वर्क कर रहा है क्या? लेट्स सी, या हाँ। तो चैतन्य, अब मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? यस बच्चा, लिमिट ऑफ y निकालना है व्हेन x इज टेंडिंग टू 1। पहले क्या लिखोगे? इसको सीरीज वाइज बोलना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आई थिंक कुछ साउंड का इशू है एट द एंड ऑफ चैतन्य। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ले लेते हैं आयुष को। ओके आयुष, ट्राई करके बताओ x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो इस एक्सप्रेशन की कैसे कैसे सॉल्व करोगे? हाँ आयुष बोलो। सर तो हम लोग सबसे पहले y के जगह वो वैल्यू लिख देंगे y की। बोलो क्या है? x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हाँ आगे बोलो। और फिर अपन को पता है कि x टेंडिंग टू 1 है, हाँ, तो अपन x स्क्वायर की जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, डालो, कितना हो जाएगा बोलो? -1। ठीक है, पक्का? अच्छा, यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट वाला आप लेते हैं, गुड बच्चा, गुड। ठीक है, नाउ लेट अस टेक कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय, ट्राई करो अभी। नेक्स्ट वाला बोलो कैसे सॉल्व होगा। लिमिट ऑफ
y टेंडिंग टू माइनस x टेंडिंग टू -1 कैसे निकालोगे? यस बच्चा बोलो। हाँ कार्तिक है बच्चा बोलो। सर सर इसमें y की कुछ दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। हाँ बोलो बोलो, y की क्या वैल्यू दी है बोलो। y इज x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू बोलो, यहाँ क्या दी है? -1। माइनस x टेंडिंग टू -1। ठीक है, x टेंडिंग टू -1, तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं और क्या हो जाएगा आंसर बोलो? 1 माइनस -1। कितना आ जाएगा? -1। -1। ठीक है, गुड बच्चा। नेक्स्ट वन लेते हैं अपन कुशल को। ठीक है, कुशल ट्राई करो इसको, नेक्स्ट वाला। हाँ कुशल बोलो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2y स्क्वायर। हाँ बच्चा बोलो। सर y की जगह पे x स्क्वायर माइनस 2 रिप्लेस करेंगे ठीक है, और उसका Limit होल of स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ लिखते हैं x टेंडिंग टू 2। करो तो एक बार रिप्लेस करो, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सर x स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आंसर आएगा। ग्रेट, गुड। तो अब लेते हैं नेक्स्ट वन महिविश को। हाँ तो महिविश ट्राई करो अब ये नेक्स्ट वाला। यस बच्चा। Sir, x is tending to be 0. Then the limit of y plus 5 लिखेंगे x square minus 2 plus 5. x स्क्वायर -2 ठीक है। सर आंसर 3 आ जाएगा क्योंकि x 0 है तो 0 हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। श्योर? यस सर। ठीक है, तो वी हैव 0 -2 which is equal to। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सब कि हमने अभी तक क्या यूज किया? यस सर। गुड गुड बच्चा, ठीक है, गुड बच्चा। यू कैन राइट now I think we are ready to move in the next part, right? Next part of the actual differentiation का term और इंटीग्रेशन का टर्म को मिला देते हैं। अब हमारा एक्चुअल टर्म निकल के आएगा। ठीक है, देखो अभी हमने क्या क्या देखा। हमने शुरुआत में स्लोप के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको कहा हम tan थीटा कहते हैं। फिर tan थीटा को हमने क्या कहा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब स्लोप को हमने कैसा लिखा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। फिर हमने एक टूल की बात की, ओके, फोर्थ वाला ओके, आयुष सिंह फोर्थ वाला रिपीट करो। ठीक है, तो देखो फोर्थ वाले में हमने क्या किया? सिर्फ आयुष y की जगह उसकी वैल्यू रख दी। y की कितनी वैल्यू थी? देखो आयुष इधर, सी द वैल्यू ऑफ y कितना है बच्चा? x स्क्वायर -2, उसको यहाँ बस रख दिया। तो x स्क्वायर -2 था, तो x स्क्वायर -2 कितना हो गया? x स्क्वायर +3 हुआ कि नहीं? x स्क्वायर +3 हो गया, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, राइट, x स्क्वायर +3। अब बस हमने x की जगह 0 डाल दिया क्योंकि लिमिट लगी हुई है। इसका मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन y + 5 is tending to 3 when x tends to 0। इसको अपन लिख सकते हैं y + 5 is tending to 3 when x tends to 0। इसका मतलब है ये, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ आयुष? क्लियर हुआ बच्चा? ओके, है ना, ये मीनिंग है इस पूरे टर्म का, लिमिट्स का ये फंडा है। दिस इज द मीनिंग, राइट, दिस इज द इंटरप्रिटेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे? राहुल तुम्हारा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं देखना। हमने देखा m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट, उसको हमने लिखा डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट। फिर हमने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट देखा, मतलब कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की तरफ अप्रोच करे, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या कहा? अगर याद करो हमने कहाँ छोड़ा था इस कॉन्सेप्ट को? मैंने कहा था अगर ये डेल्टा x छोटा होता जाए, अगर ये डेल्टा y छोटा होता जाए, इतना छोटा कि इट बिकम्स क्लोज टू 0,
अच्छा, डेल्टा वाई का मतलब क्या है? चेंज इन वाई। क्या है ये? चेंज इन वाई। और डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स। तो अगर एक्स में बहुत जरा सा चेंज हो तो उसको मैं क्या कहूंगा? चेंज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, very small, right? And delta y is also very small. ऐसा जब भी होता है तो हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखना, हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। बहुत छोटा है, जीरो के बहुत नजदीक आ गया, मतलब लगभग कोई चेंज हुआ ही नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ। और उस समय y में भी चेंज कैसा होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, राइट? तो अब कहने का मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अब इसको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेट्स से अभी हमारे केस में अगर सपोज हमने टाइम लिखा 2 आवर्स, ठीक है, टाइम लिखा 2 आवर्स और टेम्परेचर लिखा 50 डिग्री सेल्सियस। अगर टाइम हो गया 2.00000001 आवर, तो टेम्परेचर में भी जो जरूर चेंज आया होगा वो बहुत छोटा सा चेंज होगा। दिस चेंज, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, चेंज बहुत छोटा होगा। तो हमारा यहाँ चेंज कितना है? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम इज 0.000, राइट, 1। उसी तरह से डेल्टा टी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, 0.0005। वेरी स्मॉल चेंज इन temperature happens when a small change in time is happening. क्लियर हो रहा है सबको कि जब टेम्परेचर जब टाइम बहुत छोटी वैल्यू से बदला तो टेम्परेचर भी बहुत छोटी वैल्यू से बदला। कहने का मतलब आई कैन राइट लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्लियर हुआ? ये सिर्फ एग्जाम्पल था, इसमें अटकना मत, एग्जाम्पल था, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय dx, मतलब ये डेल्टा क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? d बन जाता है। डेल्टा क्या बन जाता है? d बन जाता है, राइट? कब? जब जो चेंज है वो कैसा है? व्हेन द चेंज इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, इन फैक्ट स्मॉल या वेरी स्मॉल। When the change is very small, डेल्टा कैसा बन जाता है? d। कैसा बन जाता है बच्चों? d। ठीक है, तो अब इसको लिख लो। क्लियर है बच्चों लोग कि हमारे पास हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x को dy बाय dx कब लिखा? जब चेंज कैसा है? बहुत स्मॉल। चेंज कैसा है? बहुत स्मॉल। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब y की अगर अलग अलग वैल्यू हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, y की अगर अलग अलग वैल्यू हो और हमारे पास सपोज y है x² + 2, ठीक है, सपोज y है e पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज y है log ऑफ x, राइट, सपोज y है sin ऑफ x। मतलब कहने का क्या मतलब है कि y x के साथ अलग अलग तरीके से उस पर डिपेंड कर सकता है। क्या कहा मैंने? y can depend on x in different ways. y can depend on x in different ways. In different ways. Right? In such a scenario, ये जो याद करो हमने क्या शुरुआत कहां से किया था? देखो क्या कहा था? डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? tan थीटा या स्लोप। तो अब अगर y x के साथ अलग अलग तरीकों से चेंज हो रहा है ना, और मैं y का चेंज निकाल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको कहता हूं dy बाय dx। अब यहां देखो क्लास, इसको एक हम लोग ना चार्ट या एक चार्ट के फॉर्मेट में अलग अलग मीनिंग लिखेंगे। शुरुआत से रिवीजन करते हैं। हमने इस dy बाय dx को क्या कहा? स्लोप कहा। क्या कहा? स्लोप कहा। और इसकी वैल्यू का क्या कहा? y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। किसका स्लोप है ये? टेंजेंट का स्लोप है। किसका स्लोप है? tan लिखने का मतलब ही टेंजेंट है। मतलब अगर एक कोई कर्व है, राइट, कोई एक कर्व है और उसके लिए हमने एक टेंजेंट बनाई,
राइट, उसके लिए हमने एक टैंजेंट बनाई। टैंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। यहां पर लिख लो, इफ यू आर नॉट अवेयर, टैंजेंट का मतलब है, टैंजेंट इज अ लाइन which touches the curve at one point only, at one point. So suppose ये x है, sorry, this is y, this is x, right, and I draw a curve here, ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम वही वाला कर्व बनाते हैं जो हमने शुरुआत में बनाया था। देखो, शुरुआत, क्लास की एकदम शुरुआत याद करो, मैक्सिमा और मिनिमा याद आ रहा है। अब यहां पर इसी कर्व को हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए बनाया था ताकि उसको यहां पर हम एप्लीकेशन में ला सकें। देखो, ये टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, फिर टेम्परेचर घटा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर बड़ा घटा, ऐसा, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम का वेरिएशन है ये, टी वर्सेस स्मॉल टी, ठीक। अब अच्छा ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर, ये कर्व का एक पॉइंट है, इस पे अगर मैं एक टैंजेंट बनाना चाहूं तो ये टैंजेंट कहलाएगी। ध्यान से देखना, ये दिस विल बी कॉल्ड एज अ टैंजेंट, मतलब कर्व को एक पॉइंट पर छू रही है ये, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ टैंजेंट, this line is called a tangent, ठीक है। so this is a line which touches the curve at any one point। तो अब जैसे ये भी एक tangent हो सकती है, देखो कहीं भी हो सकती है tangent, जरूरी नहीं है हमेशा horizontal हो, ये भी tangent हो सकती है, मतलब this is also a tangent, ठीक है। उसके बाद सपोज यहां पर मैं इस जगह एक tangent बनाना चाहता हूं, अलग अलग लाइन्स हैं ये, है ना। अब आप लोगों ने याद है, मैंने आप लोगों को क्लास में tan थीटा की वैल्यू बताया था, कैसे हम लेते हैं। ऑब्ट्यूज एक्यूट के लिए क्या क्या होती है, देखो यहां पर ये वाली जो लाइन है जो कि पॉइंट ए के लिए हमने बनाई है, ठीक है, ये पॉइंट बी है सपोज और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के कैसे पैरेलल। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा की जगह क्या डालोगे, tan 0, तो स्लोप कैसा हो गया, 0। अच्छा, इस वाली लाइन के लिए देखो ये एंगल कैसा है, याद है हमने पढ़ा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज, इसीलिए tan थीटा कैसा हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा होता है नेगेटिव, याद आ रहा है, ठीक है। यहां देखो ये वाला थीटा, ये थीटा कैसा है, एक्यूट, कैसा है क्लास, एक्यूट, याद आ रहा है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं, राइट। हमने पढ़ा है कि tan थीटा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसको याद कर लेना क्लास, इफ यू हैवंट येट लर्नड इट, ठीक है। क्या क्या होती है वैल्यू, देखो ये थीटा, राइट, अगर 0 है, अगर 30 है, याद है अपन ने ये वैल्यूज देखा था, मैंने कहा था इनको एकदम अच्छे से याद रखना है, अलग अलग वैल्यूज ऑफ tan थीटा, ठीक है। इसको लिखो सब लोग, tan थीटा 0, राइट, एट 0 डिग्री। 30 पर कितना होता है, 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3, 90 पर नॉट डिफाइंड, 120 पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, राइट, करेक्ट, याद आ रहा है क्लास, है ना। तो इस तरह से 0 पर कुछ भी, राइट। तो इस तरह से हमारे पास, कहने का मतलब जब भी कभी थीटा 90 से छोटा है या एक्यूट है, थीटा कैसा है, एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, मैं अगर इन सबको हटा भी दूं, राइट, इन सबको हटा भी दूं, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां थीटा इज एक्यूट which is less than 90। acute शब्द का क्या मतलब होता है क्लास, less than 90। so when theta is less than 90 or acute, then I have tan theta is positive। जबकि जब आप बात करते हो, सपोज आप 150 भी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसमें भी कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब जब, और सपोज यहाँ 110 भी ले लेते हैं तो उसके लिए भी कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब वो सारी वैल्यूज जो थीटा की 90 से बड़ी हैं उसको अपन कहते हैं ऑब्ट्यूज, और उसके लिए tan थीटा कैसा आता है, नेगेटिव। tan थीटा कैसा आता है, नेगेटिव।
तो स्लोप अलग अलग वैल्यूज ले सकता है अलग अलग पॉइंट्स पर। यहां पर स्लोप एट ए कैसा है 0, स्लोप एट बी कैसा है नेगेटिव, स्लोप एट सी, देखना एबीसी पॉइंट्स हैं ऑन द ग्राफ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। सी पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब हम वापस आते हैं, ये पूरा टेंजेंट का एक क्विक रिव्यू था, क्विक रिवीजन था जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब dy by dx को हम क्या कहते हैं tan थीटा, क्या कहते हैं tan थीटा, या हम इसको और क्या कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या कह सकते हैं क्लास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इसी को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, सुनना सभी लोग ध्यान से, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। लिखो सब लोग, y का चेंज होना x के साथ, यानी कि y कैसे बदल रहा है x के साथ, उसको मैं क्या कहूंगा dy by dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called as dy by dx। क्या कहते हैं इसको dy by dx, राइट, करेक्ट, ठीक है। लिखो इसको सब लोग, इसका एक और नाम है, इसका नाम है डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। लिखो सब लोग इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशियल। ये सब टर्म है ना, अभी नए हैं, धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाओगे। इसका टर्म है, इसका नाम है फर्स्ट डिफरेंशियल। क्या कहते हैं इसको फर्स्ट डिफरेंशियल। लिख लो सब लोग, एक और बात नोट करना क्लास, एक और बात नोट करना, ये वाला जो पॉइंट था जहां पर ये y मैक्सिमम आ रहा है, देखो वहां पर स्लोप 0 है, ठीक है। वैसे ही ये वाला ये पॉइंट लेते हैं, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं d, क्या नाम दे देता हूं d। तो इस d पॉइंट पर भी मार्क करना, अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, क्या बनाऊं टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, सपोज सिर्फ d, तो वो टेंजेंट देखना कैसी बनी है, ऐसी कुछ टेंजेंट बनी है। ये वाली टेंजेंट देखो, किस टेंजेंट की बात हो रही है, दिस टेंजेंट, राइट। ये वाली टेंजेंट दोनों कैसी है क्लास हॉरिजॉन्टल, कैसी है हॉरिजॉन्टल। अगर कोई भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप कैसा होता है 0, स्लोप कैसा होता है 0। क्यों? क्योंकि वो एंगल कैसा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 0, कैसा बना रही है भाई 0। तो md कैसा हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू d इज गिवन एज 0। कब हो रहा है ये, जब y कैसा वैल्यू ले रहा है मिनिमा, y कैसी वैल्यू ले रहा है बच्चा मिनिमा, तो दिस इज y मिनिमा। तो इसका मतलब जब y मिनिमम या मैक्सिमम हो, जब y मिनिमम या मैक्सिमम हो, ऐसे टाइम पर स्लोप कैसा हो जाता है 0। तो इसको एज अ नोट लिख लो अपने पास, टेक दिस एज अ नोट, when y assumes, assume करना मतलब ग्रहण करना या takes that value, right? So when y assumes maximum or minimum value when y assumes maximum or minimum value dy by dx और slope, जिसको अपन ने m से रिप्रेजेंट किया था, वो कैसा हो जाता है tan of 0 is equal to tan of 0 degree which is 0। लिख लो ये, at y is equal to y max and y is equal to y minimum, या जिसको अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा,
ये पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्सिमा या मिनिमा। ये लिख लो सब लोग, everyone note down this. When y assumes maximum or minimum value, उस टाइम पर when y assumes maximum or minimum value, उस टाइम पर स्लोप कैसा हो जाता है, 0। इसको नोट कर लो एवरीवन, प्लीज नोट दिस डाउन क्विकली। लिखा सबने, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं। जैसे अगर आपके पास अलग अलग y हो जाएं, ऐसे अलग अलग तरह के y हो जाएं, तो इनको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अब इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन, हाँ या ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं, डिफरेंस वर्ड क्यों आता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या लिया है, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x लिया है कि नहीं, हाँ या ना। और ये डेल्टा में हमने क्या किया था, डिफरेंस लिया था, किसका, फाइनल और इनिशियल वैल्यू का, हाँ या ना। वहीं से, उसी डिफरेंस वर्ड से आता है डिफरेंशिएशन। क्या वर्ड आता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको देखो बोलते कैसे हैं, अगर मैं लिखता हूं dy बाय dx, तो इसको मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखो अलग अलग d by dx नोट कर लो, राइट, एंड वी विल एंड आवर क्लास विद दैट। So d by dx of e power x is given as e power x. d by dx of x का power n is equal to n into x का power n minus 1. d by dx of log of x to the base e, ठीक है, is given by 1 by x. log of x to the base e को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। log to the base e को हम कहते हैं नेचुरल लॉग, या इसको ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। इसका d by dx है ना, सेम थिंग है, इज 1 by x, राइट। अच्छा, या एक ही लाइन में लिख सकते हो इसको, d by dx of ln of x is given by 1 by x। उसी तरह से d by dx of x का पावर n is equal to n into x का पावर n minus 1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा d by dx of x का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 देखो यहाँ क्या आया, n सामने आ गया और ऊपर n minus 1 हो गया, तो 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 minus 1, मतलब 4x3। एक और एग्जाम्पल देखो, d by dx of x का पावर सपोज 9, तो ये कैसा हो जाएगा, 9 into x पावर 8। क्लियर हो रहा है, एक ही के हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, राइट। अच्छा, अगला रूल देखो, d by dx of sin x is equal to cos x, राइट। d by dx of cos x is equal to minus sin x is equal to minus sin। d by dx of tan x is sec square x, मतलब इसका क्या मतलब है, sec of x का होल का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूलाज अपने पास लिख लो क्लास, ये कुछ बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा और भी कई फॉर्मूलाज है डिफरेंशियल में। अगर कुछ और आते हैं इन द मीनवाइल हम लोग को कंसिडर कर लेंगे, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा, राइट, जहां जहां जरूरत पड़ती है जिस फॉर्मूला की। लेकिन ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ मतलब एकदम जुबान पे होने चाहिए, डॉजिंग,
मैं रात के सुबह के 4 बजे उठा के पूछूं कि हाँ भाई बताओ आयुष क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो फटाक से आंसर आने चाहिए सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो आपके एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए एकदम जुबान से, राइट, फटाक से एकदम क्विक। तो ये डॉजिंग के फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, लर्न बाय हार्ट। और कैसे होगा, रटना नहीं है, इसको यूज करेंगे, हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसको एकदम बाय हार्ट याद रखना है। विथ योर हार्ट एंड सोल यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। कल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना, कल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, उन प्रॉपर्टीज का, प्लस हम साथ में कुछ और रूल्स देखेंगे, राइट। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे लो, डिवाइड किया जाता है तो कैसे लो, राइट, प्लस और सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कैसे लो, बहुत सारी चीजें वो सब हम देखते जाएंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। फिर मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे। और आज हमने जैसे फर्स्ट डिफरेंशियल देखा वैसे ही हम सेकेंड डिफरेंशियल देखेंगे, राइट, सेकेंड डिफरेंशियल देखेंगे। तो इस तरह से हम कल के लिए कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है, राइट। अब आई ओपन द क्लास फॉर डिस्कशन, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ओके, थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखा है कुशल, ये जो है ना थर्ड फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, इसको लॉग कहते हैं कुशल, है ना, ये बेस कहलाता है लॉग का। इसको अगर आप चाहो तो लॉगरिथम एक खास चैप्टर है, राइट, आप लोगों के लिए अपन एक ब्रीफ 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उसको कैसे लिखा जाता है अपन समझ लेंगे, ठीक है। इसको भी कल देख लेते हैं। इसको हम लॉग कहते हैं, लॉग, लॉगरिथम, और ये इसका बेस है, बेस इज ई, राइट। इसका डिफरेंशियल करते हो तो 1/x आता है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ln। जब भी कभी बेस ई होता है ना तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ln ऑफ x। लॉग बेस टू द ई लिखने का तरीका होता है ln ऑफ x। तो उस ln ऑफ x का डिफरेंशियल कितना है, 1/x, ठीक है, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, ठीक है। So, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो कल चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ रूल्स लगते हैं वो देखते हैं, राइट, और लॉगरिथम देखते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे कल सब क्लियर होने लगेगा। लेकिन आज जो पढ़ाया है अगर उसमें कहीं कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। ओके, कल संडे है, ठीक है ठीक है, तो कल छुट्टी है, तो उसके बाद अपन देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मंडे को हम एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे या फिर ऑन, सो बाय कल आई मीन जो भी हमारी अगली क्लास होती है उसमें, ठीक है, अदरवाइज ऑन द कमिंग ट्यूसडे। लेकिन ये फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, राइट, एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को अगर शीट्स कुछ चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, एक एक करके वील स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। वो चलो, या वील स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, दिस वाज पेज 1, ठीक, दिस वाज पेज 2। स्क्रीनशॉट्स ले लो अब अगर जरूरत हो तो, ठीक है। लेकिन अपन की मेहनत कब होगी, जब अपन हर चीज को लिखेंगे क्लास में, व्हेन वी राइट समथिंग तब एक्चुअल मेहनत होगी, ठीक है। इसलिए लिखो, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज थर्ड पेज, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। This is fourth page, ठीक है, all right, let us now take fifth page, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सब लोग, ठीक है, या इस पेज के लिए भी ले लो, either screenshot or photograph, whatever you think, right, इस पेज के लिए भी ले लो, this is x is very small, now आगे लेते हैं, ठीक है।
ये भी लिख लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो मतलब, ठीक है। अच्छा, अब जिसको डाउट हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी की अगर 3 बजे क्लास हो तो वो लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ somebody has a class at 3 they may log out, others stay and listen। जितना किसी और के डाउट से सीखोगे उतने बुद्धिमान बन जाओगे। यस, बुद्धिमान बनना शुरू करते हैं। हाँ जी, सो वी हैव राहुल वांटिंग टू टॉक अबाउट समथिंग। हाँ राहुल बच्चा पूछो। यस बच्चा तो बोलो। अगर x को एक लिमिट दे दी जाए, x को एक लिमिट दिया जाए, तो y को कोई लिमिट नहीं रहता है ना उसके बदले में? देखो इस लाइन को समझो बच्चा, लिमिट दे दिया जाए का मतलब है कि हाँ हाँ महेश निकल जाओ, क्लास है तो निकल जाओ बच्चा, ठीक है। अगर 3 बजे क्लास है तो जा सकते हो, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं हो तो 2 मिनट रुक के सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अप टू यू। हाँ बोलो बोलो राहुल। तो अगर x को कोई लिमिट दी है तो जरूरी नहीं है ना कि y को कोई लिमिट रहे? देखो इस चीज को समझो, अगर y और x एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब अगर y है x+1, ठीक है, और x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, इफ x इज अप्रोचिंग 2 या if x इज टेंडिंग टू 2, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ही हो गया y इज टेंडिंग टू 3। क्लियर? क्लियर हुआ? अगर y और x एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और x की वैल्यू किसी एक खास वैल्यू पर अप्रोच करने लगे, अगर x किसी एक खास वैल्यू पर अप्रोच करने लगे तो y अपने आप ही उस तक अप्रोच करने लगता है। क्लियर हो गया? उस फॉर्मूला में x को सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो। क्लियर? यस सर। सर और एक डाउट है। पूछो। सर जैसे कि x की एक x 10 to 5 लिखा था ना आपने एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। उसमें आपने बोला था कि एकदम नियरेस्ट नंबर रहना चाहिए, तो है लेकिन उसका कोई पैमाना नहीं है राहुल, उसका कोई पैमाना नहीं है कि इतना ही नियरेस्ट, बस लगभग नियरेस्ट हम मान लेते हैं, मतलब उसके इतना नजदीक है कि उस नंबर को और जिस तक वो अप्रोच कर रहा है उसको तुम लगभग सेम मान सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले जाओगे और राउंड ऑफ करोगे तो लगभग सेम मान सकते हो। तो वो उससे बड़ा हो सकता है क्या, वो जो नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जब मैथ्स, यू रीडिंग मैथ्स राइट राहुल? यस सर। हाँ, तो इसीलिए आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में देयर आर 2 टाइप ऑफ लिमिट्स, एक को बोलते हैं पॉजिटिव लिमिट्स, है ना, और एक को कहते हैं नेगेटिव लिमिट, राइट। तो अगर मैं x को सपोज 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं, मतलब ये नंबर हो जाता है सपोज x की वैल्यू 4.99, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लिमिट। अगर मैं यहां से अप्रोच करता हूं 5 पॉइंट, इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट देन मैं बस इतना बताऊंगा आपको कि इस तरह से अगर आप 5.011 सपोज, एक मिनट, ठीक है, सपोज यहां पे आपकी वैल्यू 5.001 या फिर वैल्यू है 4.999, तो 2 तरह की लिमिट्स होती हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव लिमिट, एक को बोलते हैं नेगेटिव लिमिट। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। क्लियर है? यस सर। है ना, ये चीज आप पढ़ोगे, है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। जब क्लास 11th और 12th में जब भी आपके पास वो टॉपिक आता है लिमिट्स, तब आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स में काफी खासियत जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में इतनी ही जरूरत है कि समझने की जरूरत है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डी वाई बाय डी एक्स बना देता है, यही लिमिट का फंक्शन, यही लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डी वाई बाय डी एक्स बना देता है। इतना ही जरूरत है राइट नाउ टू अंडरस्टैंड, बाकी जब जब जहां जहां जो जरूरत पड़ेगी आई विल डू दैट। ठीक है? क्लियर है राहुल? यस सर। ओके। यस सर। एनीथिंग, एनीबडी एल्स? किसी को कुछ पूछना है प्लीज हैंड रेज करो एंड आस्क। एनीवन? जो भी आज हमने पढ़ा, जो भी पिछली किसी क्लास में पढ़ा हो और वो डाउट रह गया हो, पूछना हो कि सर ये चीज कैसे होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी न्यूमेरिकल, कुछ जानना है, पूछना है, पूछ लो बच्चा लोग। Ask anything, anyone, clear all your doubts, right? It's very important. Rahul, anything else बच्चा? सब clear है सबको? सर एक डायग्राम में था पर वो मैं ऐसे नहीं पूछ सकता।
सर मैं वो आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको एक भेज दूंगा ठीक है, अपन वो व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है, तो अगली क्लास में क्लास चालू होते ही मुझे याद दिलाना और पूछ लेना, ठीक है? या अगली क्लास में Yes, जब sir. डाउट सेशन लेते हैं इसी तरह से तब पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ओके, बाकी सबको सब क्लियर है पक्का? एवरीवन, इफ अच्छा अब अगर क्लास में हमने जो भी पढ़ा है राइट वो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज करो। ओके, आई थिंक कार्तिकेय हैज सेंड सम मैसेज, एक मिनट, we'll just check, let me check। तो कार्तिकेय is asking सर कल कोई टेस्ट है क्या? कल कोई टेस्ट है क्या? टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर होने वाला होगा तो उसकी खबर आ जाएगी ग्रुप पे, तो रात को सब लोग अपना ग्रुप चेक करेंगे बिफोर यू स्लीप, ठीक है? रात को सब लोग ग्रुप चेक करेंगे बिफोर यू स्लीप, एटलीस्ट बाय 9:30 और 10। अगर कल टेस्ट होगा तो उसकी खबर आ जाएगी। मैंने क्या कहा था याद है? टेस्ट अब से सरप्राइज होंगे। जो चीज आप पढ़ चुके हो उसका कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है। उसका फेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन रिवीजन करना है, भले 10 मिनट भले 20 मिनट, बट उसी दिन लिख लिख के अपना रिवीजन करना है। और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कहाँ डालना है? रिवीजन कॉपी में। कहाँ डालना है? रिवीजन कॉपी में, ठीक है? जैसे आज हमने फॉर्मूलाज पढ़े, ये कहाँ जाने चाहिए आपके फॉर्मूलाज? ये सारे फॉर्मूलाज कॉपी हो जाने चाहिए इनटू योर फॉर्मूला कॉपी टुडे, ठीक है? तो कार्तिकेय बहुत अच्छा सवाल था, इससे आपने सबको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है, कि कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो रेडी रहना है सबको। गुड। Anyone, any other question, any new assignment? वो भी आ जाएगा, you will get to know about it, right? I'll inform you if yes, ठीक है, on the group। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, याद आ रहा है सब लोगों को? वो असाइनमेंट भी सबमिट करो अगर आपने नहीं किया तो, राइट? बिफोर टुमारो मॉर्निंग आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है? इफ नॉट येट डन, राइट? ठीक है, तो इट वाज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स टू रिमाइंड यू ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है। ऑल्सो इफ समबडी इज न्यू, है ना, जो भी आपके पुराने लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं उनको फिनिश करो, राइट? सबसे पहले वेक्टर्स फिनिश करो, इस एक वीक में वेक्टर्स फिनिश करो। याद है हमने कहा था कि आपको इस वीक में वेक्टर्स फिनिश करना है ताकि हम अगले वीक आप लोगों के लिए वेक्टर्स के डाउट्स ले सकें, राइट? तो वेक्टर्स फिनिश करो बच्चा लोग, राइट? वेक्टर्स फिनिश करो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल लेवल 1 और लेवल 2 डीसी पांडे से बनाना है, तो ये एक वीक का समय आप लोगों के पास, वेक्टर्स फिनिश करो। मुझसे डाउट क्लास होगी एक, है ना, कमिंग वीक में, और उसके बाद फिर टेस्ट होगा अगले वीक वेक्टर्स का, राइट? सरप्राइज टेस्ट होगा। एनी डे आई कैन से कि भाई कल टेस्ट है, तैयार हो जाओ, ठीक है? तो इसीलिए अपने आप को अब्रेस्ट रखो, राइट? तैयार रखो। लेवल 1 लेवल 2 वेक्टर्स, लेवल 1 लेवल 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? तो पहली चीज जो हमको करनी है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स को शुरुआत से देखना शुरू करो और अच्छे से फिनिश कर लो, ठीक है? पहले देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि हमको क्या क्या करना है अभी, टू मेक श्योर कि चीजें एकदम क्लियर हो दिमाग में। पहला काम, अगर आपने वेक्टर्स के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आने वाले वीक में वेक्टर्स के लेक्चर्स अटेंड कर लो, और आपके पास जो नोटपैड है ना, उसमें डाउट्स मार्क कर लो, लिख लो। अगर कुछ पूछना है तो नोट डाउन योर डाउट्स, ये पहली चीज, राइट? अगर वेक्टर्स फिनिश कर लिया है तो उसका लेवल 1 लेवल 2 के लिए मैंने आपको काफी टाइम दिया था। अगर अभी भी नहीं किया है तो फिनिश कर लो। किसका? वेक्टर्स का लेवल 1 लेवल 2 फ्रॉम डीसी पांडे। अगर ये हो गया है, राइट, तो लेवल 1 लेवल 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? और अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी आपने मेरे पास अटेंड नहीं किया है तो पहले उसके वीडियोस देख लो, ठीक है, राइट? और फिर लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे डाउट्स को मार्क करके रखो। ऐसे सारे बच्चे जो पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं या पहले मेरे साथ नहीं पढ़ पाए हैं, वो वीडियोस देख लीजिए, डाउट्स नोट कर लो, और फिर आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास होगी जहां आपको जो जो नहीं समझ में आया वीडियोस में, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी 1 या 2 क्लासेस में, ठीक है? तो आपका अभी ये काम है। अगर ये सब हो चुका है, राइट, अगर ये सब हो चुका है, मतलब वेक्टर्स के आपने सारी क्लासेस अटेंड की है, राइट?
यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लेवल 1 लेवल 2 किए हैं, सारे क्लासेस अटेंड कर लिया है, मेक श्योर करो कि फॉर्मूला कॉपी कंप्लीट हो। फॉर्मूला कॉपी कैसी हो? कंप्लीट हो। अगर वो भी कंप्लीट है, फॉर्मूला कॉपी कैसे कंप्लीट करनी है बता चुका हूं, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उसके एक या दो एप्लीकेशंस। अगर ये भी हो गया है तो आपको HC वर्मा बनानी है। लेकिन अगर अभी ये सब बचा है तो आने वाले एक हफ्ते में सबसे पहला काम है वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स देख लो। वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स देख लो। दिस इज योर फर्स्ट वर्क इन दिस वीक, राइट? करेक्ट? और अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लो, ठीक है? और मुझसे पूछ लेना, इन आई विल गिव 1 और 2 क्लासेस जहां पे आप आके मुझसे सारे बचे हुए डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? पहले ये काम करो। अगर वेक्टर्स का ये दोनों काम हो चुके हैं, मतलब आपने सारी क्लासेस अटेंड की है, तो वेक्टर्स का लेवल 1 लेवल 2 बना के फिनिश करो, राइट? अगर वो भी हो चुका है तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को बना के फिनिश करो, ठीक है? सारे डाउट्स को याद रखना, जब क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी याद है मैंने बताया था कि आपको कैसे मार्क करना है क्वेश्चंस को। सपोज मैंने 4 क्वेश्चन है जो सॉल्व किए या 5 क्वेश्चन है जो सॉल्व किए, ठीक है? तो अब मुझे क्या कैसे सॉल्व करना है? पहले सॉल्व करना है फटाफट टाइम देखकर। सपोज मेरे पास 5 क्वेश्चन है तो मुझे टाइम लगाना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है कि मैं इनको 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, राइट? 10 मिनट तक कोशिश करनी है। जो बना अच्छी बात है, नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बना अच्छी बात है, नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसा टाइम देना है। उसके बाद फिर दोबारा इनको लगाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक है? तो अब हमने क्या किया, ट्राई इस तरह से करना है जब लेवल 1 लेवल 2। और याद है हमने कहा था कि कभी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहला काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? एग्जाम्पल्स बनाओगे। किसके एग्जाम्पल्स बनाओगे? जो डीसी पांडे है उसके एग्जाम्पल और HC वर्मा के एग्जाम्पल्स। याद आ रहा है क्लास? डीसी पांडे और HC वर्मा के एग्जाम्पल्स बनाने हैं। पहला काम वो होना चाहिए, सॉल्व करने में पहला काम वो होना चाहिए। उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है? क्लियर है सबको? तो आपको देखो इस तरह से वर्क करना है। पहला ये लेक्चर्स अटेंड करो, अगर छूट गए हैं तो पुराने वाले देखकर कवर करो। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करो, राइट? बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करो, दोनों बुक्स के, HC वर्मा और DC पांडे। ऑफ कोर्स NCERT आपकी बुक है ही, वो आप बनाओगे ही, राइट? एग्जाम्पल सॉल्व करो। उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 पर जाओ और ये सब करते करते प्लीज इंश्योर करो कि जब जो क्वेश्चन आसान लगा, है ना, जो क्वेश्चन आसान लगा, बहुत आसान लगा, उसमें VE लिखोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा है, तो वहां C डालोगे, C इज चैलेंजिंग। तो आपके 3 मार्क्स होंगे, VE, E और C। VE मतलब वेरी इजी, VE मतलब वेरी इजी, E मतलब इजी और C मतलब चैलेंजिंग। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं जब भी आप एग्जाम्पल्स बनाओगे या DC पांडे या फिर HC वर्मा के एग्जाम्पल्स बनाओगे, ठीक है? ओके, क्लियर है क्लास सबको? एनीबॉडी, एनी अदर क्वेरीज? कुछ पूछना है पूछ लो। कार्तिकेय, यू विल गेट टू नो, डोंट वरी। अगर कल टेस्ट होता है तो चैप्टर का नाम और चैप्टर सब कुछ बता दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ बच्चा चैतन्य, चले जाओ, अगर क्लास है तो निकल जाओ, ठीक है? ओके, ठीक है क्लास, thank you very much, thanks a lot for being a part of the class. In case there are any queries, let me know, else we'll put the class off, ठीक है? तरीका समझ में आ गया सबको? इस तरह से मार्क कर लेना है कौन सा क्वेश्चन आसान है, चैलेंजिंग है। और अगले आने वाले हफ्ते में वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स देख लो, ठीक है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे क्वेश्चंस बना लो, वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस बना लो और डाउट नोट करके रखो, ताकि जब मैं अगली क्लास दूं आप पूछ सको, ठीक है? और टाइमर देखकर प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनाओ, ठीक है? 10 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में बन जाए, मतलब पर मिनट पर क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये अपनी स्पीड है अभी के लिए, इंटेंडेड स्पीड है, ठीक है? और अगर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा टाइमर बंद करके फिर सॉल्व करो, ठीक है? ऑल राइट बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन क्लास, थैंक यू।